Okay, so for today's session, we'll start with chapter 2. Okay, French Revolution was the chapter 1, which we have studied. Now we'll start with chapter 2, that is Socialism in Europe and Russian Revolution. Fine. Yeah. The age of social change. Now, the very first topic is the age of social change. In the previous chapter, you read about the powerful ideas of freedom and equality that circulated in Europe after the French Revolution, right? कि हम लोग ने देखा था that French Revolution हुआ and there were ideas. कौन कौन से ideas थे बच्चा लोग जो French Revolution के बाद से सब जगह spread हुए? Can anyone let me know which were those ideas? Okay. So we have seen the ideas like liberty, equality and fraternity, right? ये तीन ideas से जो French Revolution से spread हुए and then people across all over Europe country, they got inspired from these ideas. The French Revolution opened up the possibility of creating a dramatic change in the way in which society was structured. As you have read, before the 18th century, society was broadly divided into estates and orders, and it was the aristocracy and church which control economic and social power, right? हम लोग ने देखा है कि पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले what was the rule? We had the rule of like society कैसे divided था, states में divided था, right? We had states, first state था, second state था, third state था, and फिर हम लोग ने देखा that aristocracy और church का rule था. मतलब क्या aristocracy मतलब क्या? हम लोग ने देखा कि जो first state वाले लोग थे, जो clergy थे, जो nobles थे, उनका rule था. But suddenly after the revolution, it seemed possible to change this, right? But जैसे revolution हुआ, जैसे ideas like liberty, equality or fraternity spread हुआ, people got to know that no, we can come out of this aristocracy rule के ये जो king का rule है उससे हम लोग बाहर आ सकते हैं, and then we have ideas like liberty, equality and fraternity. So in many parts of the world including Europe and Asia, new ideas about individual rights and who control social power began to discuss, right? So French में जैसे ये revolution हुआ, French कैसे aristocracy rule से free हुआ, so जो neighboring countries थे like Europe and Asia, even they thought कि हमें भी ये ideas inculcate करना चाहिए, even we should follow this idea. In India, Rajaram Mohan Roy and Derozio talked of the significance of the French Revolution, and many others debated the ideas of post-revolutionary Europe. The development in the colonies in turn reshaped this idea of societal change. ठीक है, तो इंडिया में कौन कौन से फिलोसोफर आए जिन्होंने ये आइडिया ये किया, इम्प्लीमेंट किया? देयर वाज राजा राम मोहन रॉय. ये हम लोग ने देखा, राइट? राजा राम मोहन रॉय थे. हम लोग ने पहले वाले चैप्टर में भी देखा कि राजा राम मोहन रॉय ने फिर ये डिसाइड किया कि ठीक है, हम मतलब ही आल्सो लाइक दैट आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, एंड उन्होंने डिसाइड किया कि हमारे कंट्री में भी ये होने चाहिए. एंड देन देयर वाज डेरोजिया हु टॉक्ड ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन. सो दीज वर द टू philosophers, Raja Ram Mohan Roy and Derozia. The development in the colonies in turn reshaped this idea of societal change. ठीक है, and colonies भी developed हो रही थी. So now people were firm कि okay, जो liberty है, equality है and fraternity है, ये जो तीन ideas आए जो हमें French Revolution से मिले, वो अब बाकी सारे country में भी implement होने चाहिए. समझा first paragraph इतना? Any doubts in this? Yes, ma'am. Okay. Next, not everyone in Europe, however, wanted a complete transformation of society. Responses varied from those who accepted that some changes were necessary but wished for a gradual shift to those who wanted to restructure society radically. ठीक है? Now everyone in Europe wanted change, but change भी कैसा अलग-अलग type का था. Like people, उनको चाहिए था that gradual shift हो के धीरे-धीरे change हो, हमें कोई घाई नहीं है. Okay, to those who wanted to restructure society radically, और एक जो थे जिनको radically मतलब क्या फटाफट change चाहिए था. तो these were two kinds of responses which people of Europe wanted के gradual shift, तो मतलब धीरे धीरे से चलेगा shift, and one was radically के नहीं
रातों रात बोलते हैं चेंज हो जाए, वैसा चेंज चाहिए था. सो सम वर कंजर्वेटिव्स, अदर वर लिबरल्स और रैडिकल्स. What did these terms really mean in the context of time? ठीक है, तो कौन कौन से चेंजर्स थे? एक थे कंजर्वेटिव्स, एक थे लिबरल्स और एक थे रैडिकल्स. अभी ये कौन है वो हम लोग आगे के चैप्टर में देखेंगे. What separated the strands of politics and what linked them together? We would remember that these terms do not mean the same thing in all contexts or all time. ठीक है, कि ये सारे terms कैसे आए, मतलब जैसे अभी हम लोग ने ऊपर देखा कि there were different kind of people with different opinion. Some wanted gradual change but some wanted radically change. तो जैसे ये change, मतलब जिन जिन लोगों को change चाहिए था उनको ऐसे categorize किया था, and then they were terms like conservatives, liberals, and radicals. We will look briefly at some of the important political traditions of the 19th century and see how they influence change. Then we will focus on one historical event in which there was an attempt at a radical transformation of society. Through the revolution in Russia, socialism became one of the most significant and powerful ideas to shape society in the 20th century. ठीक है? So what are they trying to say? That अभी important political traditions थे जो हम लोग ने पहले से देखा, that king का रूल होता था, फिर king का खत्म हुआ, फिर एक पर्टिकुलर कोई रूलर था. जैसे हम लोग ने देखा which was that रूलर, यहाँ पे हम लोग ने देखा था ना, कौन से थे वो रूलर जिनका ये खत्म हो गया फटाक से पावर. बोनापार्ट, who was it? नेपोलियन बोनापार्ट. या परफेक्ट, नेपोलियन बोनापार्ट. तो कैसे फिर एक सिंगल रूलर आए, सिंगल रूलर आने के बाद ये जो आइडियाज है लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी के, तो वही बताया गया है कि ये जो पॉलिटिकल ट्रेडिशंस है वो चेंज हुए. एंड 20th सेंचुरी में पीपल वर नाउ फॉलोइंग सोशलिज्म. ओके, तो सोशलिज्म का ये था आइडिया, सब जगह स्प्रेड हुआ था ना. व्हाट इज सोशलिज्म, व्हाट इज दीज टर्म्स जो हम लोग ने ऊपर देखे, कंजर्वेटिव, लिबरल्स एंड रैडिकल्स, ये सब हम लोग आज के चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, यहाँ तक एनी डाउट? ओके, चलो ना विल स्टार्ट विथ लिबरल्स, रैडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स. जो ये आइडियाज हम लोग ने देखा उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. One of the group which looked to change society were the liberals. ठीक है, तो liberals were the one who definitely wanted change in the society. तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट बन जाएगा. नाउ इन एग्जाम दे आस्क यू क्वेश्चन, देन राइट अबाउट लिबरल्स और शेयर द आइडियाज ऑफ लिबरल्स. तो ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ना, वो आप एज अ पॉइंट यू कैन मेंशन इन योर आंसर. सो फर्स्ट यू कैन राइट दैट लिबरल्स वर द वन हु नीडेड चेंज इन द सोसाइटी, दैट दे वांटेड दैट या ये जो सिस्टम है वो पूरा चेंज होना चाहिए. लिबरल्स वांटेड अ नेशन व्हिच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स. ओके, उनका मानना क्या था कि सारे रिलीजन्स को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए. नॉट ओनली हम लोग ने जैसे ऊपर देखा कि जो क्लर्जी थे, जो प्रीस्ट थे, जो चर्च जो चर्च को इम्पोर्टेंस देते थे, वैसा नहीं होना चाहिए. लिबरल्स वर ओपन माइंडेड. ओके, सो दे थॉट दैट ऑल रिलीजन शुड बी ट्रीटेड इक्वली. We should remember that at this time, European states usually discriminated in favor of one religion on another. Britain favored the Church of England, ऑस्ट्रिया एंड स्पेन फेवर्ड द कैथोलिक चर्च. तो जैसे मैंने आप लोग को बोला कि पहले कैसे चर्च को इम्पोर्टेंस दिया जाता था, तो ब्रिटेन में दे यूज टू फॉलो द चर्च ऑफ इंग्लैंड, एंड ऑस्ट्रिया और स्पेन थे वो लोग कैथोलिक चर्च फॉलो करते थे. तो ये जो सिर्फ वन रिलीजन को जो फेवर किया जाता था ना, liberals were against them और उन्होंने बोला कि no, this kind of discrimination should not be happen and all religions should be treated equally. Liberals also oppose the uncontrolled power of dynastic ruler. ठीक है, dynastic ruler मतलब क्या हो गया? Anyone? What do you mean by dynastic ruler?
डायनेस्टी, जैसे मैं अभी समझो मैं किंग हूँ, ठीक है, तो मेरा जो मतलब सन आएगा वो रूल करेगा, फिर उसका जो सन आएगा वो रूल करेगा। तो अभी समझो समझो मैं किंग हूँ, आई हैव द पावर, मतलब मुझे आइडिया है कि कैसे रूल करना है, बट ऐसा जरूरी ना नहीं है ना कि जो मेरा सन होगा उसको भी ही इज ऑल्सो अवेयर ऑफ ऑल दीज आइडियाज। तो दैट इज वाई इनको ये जो डायनेस्टिक रूल था कि एक जनरेशन टू जनरेशन जो रूल होता रहता है, दे वर लाइक दिस शुड बी अपोज्ड, इसको बंद कर देना चाहिए, एंड द वन हु इज एक्चुअली केपेबल टू रूल उनको ही ये पावर मिलना चाहिए। तो तीन चीज अभी तक हम लोग ने देखी। लिबरल्स वर द वन हु वांटेड चेंज इन द सोसाइटी, दे वर दे said that all religions should be treated equally, and they opposed the uncontrolled power of dynastic ruler, कि ये जो dynasty rule है, generation to generation का rule है, वो oppose होना चाहिए। They wanted to safeguard the rights of individual against governments. They argued for a representative, elected parliamentary government subject to law interpreted by a well trained judiciary that was independent of rules and ऑफिशियल्स, ठीक है। तो अभी उन्होंने क्या बोला, दैट दे वांटेड अ रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने बोला कि किंग का ये जो किंग का जो रूल है वो हमें नहीं चाहिए, हमें कोई एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए कि जो हमारी हु लिसन टू ऑल आवर प्रॉब्लम्स एंड देन हु कैन हैव अ वर्ड विद गवर्नमेंट, एंड फिर ऐसे ऐसा सिस्टम हो। सो दे वांटेड अ रिप्रेजेंटेटिव, बट however they were not democrats, okay, but उनको हम लोग डेमोक्रेट्स नहीं बोल सकते ना। व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेट्स? डेमोक्रेसी अपन बोलते हैं, तो डेमोक्रेट्स क्या हो गया बच्चा लोग, एनीवन जो इक्वली मानते हो सब चीज को मतलब देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। तो ये लोग भी इक्वली मान रहे थे, बट फिर हम लोग इनको डेमोक्रेट्स क्यों नहीं बोल सकते, हम आगे देखेंगे। They did not believe in universal adult franchisee, okay, पर ये लोग का मतलब they were not okay with this concept, universal adult franchisee. What is universal adult franchisee? That right of every citizen to vote. इन्होंने ऊपर देखा, इनको चेंज लाना है, उन्होंने रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट किया, बट इन्होंने इक्वल सिटीजन, जो हर सिटीजन को वोट का राइट होना चाहिए, उसको दे अपोज्ड इट, ओके। सो दैट इज व्हाई वी कैन नॉट कॉल देम डेमोक्रेट्स। मतलब डेमोक्रेट्स क्या होते हैं, जो सबको इक्वल मानते हैं, बट सिंस दे डिड नॉट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, दैट इज द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट, इसके लिए हम इनको डेमोक्रेट्स नहीं बोल सकते। They felt men of property mainly should have the vote. They all did not want the vote for women. तभी हम लोग क्यों इनको डेमोक्रेट्स नहीं बोल सकते, बिकॉज हम लोग ने देखा दैट दे डज नॉट बिलीव इन द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट। तो इनका मानना क्या था कि सिर्फ वो मैन जिनके पास प्रॉपर्टी होगा, दे हैव द राइट टू वोट, ठीक है, दैट ओनली मैन विथ प्रॉपर्टी। वुमेन्स को तो ये लोग गिन ही नहीं रहे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है, दे डिड नॉट वांट द वोट फॉर वुमेन, ठीक है। सो दे कंसिडर्ड दैट वुमेन शुड नॉट बी कंसिडर्ड, लाइक वुमेन शुड नॉट बी able to give vote, and at the same time all men भी नहीं, only men who have properties, they were able to give vote, okay। So that is all about liberals। clear है बच्चा लोग, liberals में कोई डाउट है? No, ma'am. ओके, तो हम लोग ने तीन देखे यहाँ पे, राइट, वी हैव सीन लिबरल्स, कंजर्वेटिव्स एंड रेडिकल्स। तभी हम लोग सेकंड देखेंगे, व्हाट इज रेडिकल्स, ठीक है। इन कॉन्ट्रैक्ट, रेडिकल्स वांटेड अ नेशन इन व्हिच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये किसमें बिलीव करते थे? या कि रेडिकल्स वो थे, उनको ऐसी गवर्नमेंट चाहिए थी जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन पे हो। और यहाँ पे हम लोग ने देखा इनको क्या चाहिए था, इनको सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए था, कि कोई रिप्रेजेंटेटिव हो जाए जो हमारी बातें सुने, हमको वो चलेगा। बट रेडिकल्स का मानना क्या था, दैट वी नीडेड कंट्रीज पॉपुलेशन, ठीक है, कि जो मेजॉरिटी से वोट कर रहे हैं एंड जो मेजॉरिटी बेसिस पे आए वही गवर्नमेंट हमको चाहिए। Many supported women's suffragette movements, okay। suffragette movements क्या है, यहाँ पे देखो मीनिंग लिखा है, a movement to give women the right to vote। तो इन्होंने क्या बोला कि वुमेन्स को मिलना चाहिए राइट, ओके।
तो दे सपोर्टेड वुमेन सफ्रगेट मूवमेंट, दैट दे न्यू कि वुमेन लोगों ने कितना सफर किया है टू गेट राइट्स फॉर वोट, सो दैट इज व्हाई दे सपोर्टेड दैट पॉइंट. Unlike liberals, they oppose the privileges of great landowners and wealthy factory owners. They were not against the existence of private property, but they dislike concentration of property in the hands of few. ठीक है, तो liberals में हम लोग ने देखा उन्होंने क्या बोला. लिबरल्स का क्या था, ये देखो यहाँ पे, अनलाइक लिबरल्स दे अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स. और ये जो रेडिकल्स थे उन्होंने अपोज किया कि जो लैंड ओनर्स है, जो फैक्ट्री ओनर्स है, जिसके अंडर हम लोग काम करते हैं, उनको हम लोग अपोज करेंगे. ठीक है, they were not against the existence of private property, but they dislike concentration of property in the hands of few. उनको ये नहीं था कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो हमको पसंद नहीं है, बट क्या था, जो पर्टिकुलरली जो फ्यू, मतलब क्या, जो कम लोग, मतलब कैसे देखो, अभी लैंड ओनर थे उस टाइम पे, तो हम लोग ने देखा थे वो फ्यू लैंड ओनर्स जिसके बहुत सारे लैंड थे. तो ये जो फ्यू लैंड ओनर्स है ना, जिनके बहुत सारे लैंड है, उनको हम लोग डिसलाइक करते हैं. ठीक है, तो ये उनका आइडिया था. अभी मैं आप लोग को इसमें और एक हिंट देती हूँ. ये जो लिबरल्स थे ना बच्चा लोग, ये लोग मिडिल क्लास के अपर क्लास वाले लोग थे. मिडिल में भी हम लोग देखते हैं ना, अपर होता है एक लोअर होता है, तो मिडिल के ये लोग अपर वाले थे. जो मिडिल में जैसे हम लोग ने देखो थर्ड स्टेट में देखा था, थर्ड स्टेट में भी दो टाइप्स थे, एक थे बेचारे वर्कर्स, पुअर पीपल और वो सब, और एक थे जो लॉयर थे, डॉक्टर्स थे, बट थर्ड स्टेट में थे. तो यहाँ पे वैसे ही था, लिबरल्स जो थे ना वो अपर मिडिल क्लास वाले थे, एंड ये जो रेडिकल्स थे ना वो बेचारे देखो सब वोट के लिए रिक्वेस्ट कर रहे, ये लैंड ओनर्स और वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स को ये नहीं कर रहे. मतलब ये लोग जो थे ना वो एकदम पुअर, जो थर्ड स्टेट के लोअर मिडिल क्लास है ना, उनमें से ये थे. तभी बचा कौन, फर्स्ट स्टेट वाले, बराबर ना. तो कंजर्वेटिव्स जो है ना वो फर्स्ट स्टेट वाले थे. अभी हम लोग उनके बारे में देखेंगे. कंजर्वेटिव्स वर द पीपल, देखो यहाँ पे, कंजर्वेटिव्स वर अपोज टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स, के ये जो हम लोग ने ऊपर देखा, रेडिकल्स और लिबरल्स, इनको ये लोग पूरा अपोज करते थे. ठीक है. After the French Revolution, however, even conservatives have opened their mind to the need of change. के फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद कंजर्वेटिव्स को भी लगा कि नहीं, एक चेंज होना चाहिए. क्यों चेंज होना चाहिए, देखो, because now they know that people now have changed. They know the concept of liberty, equality and fraternity. तो चेंज को उन्होंने एक्सेप्ट तो किया है, बट उनका क्या आइडिया है, लेट अस सी. Earlier in the 18th century, conservatives had been generally opposed to the idea of change. But by the 19th century, they accepted that some change was inevitable, but believed that the past had to be respected and change had to be brought about through a slow process. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, कंजर्वेटिव्स कैसे थे, दे वर रेडी फॉर द नीड ऑफ चेंज. बट अर्लियर 18th सेंचुरी में कैसा था, दे अपोज द आइडिया ऑफ चेंज, बिकॉज वहां तक कैसे था उस टाइम पे, people they were not knowing about the idea of liberty, equality and fraternity. तो उस टाइम पे उनको चेंज नहीं चाहिए था. they were happy ruling, they were happy being king, ruling over other people. But by the 19th century, when people got to know about the different ideas, now they were ready to accept change. Okay, but change कैसा, inevitable, मतलब क्या, the past had to be respected and change had to be brought about a slow process. That they believed कि जो हमारा past है हम उसको respect करेंगे. हाँ, हमारा past है हम उनको respect करेंगे और हम change लाएंगे. But कंजर्वेटिव्स ना, दे वर द वन हु बिलोंग टू किंग, जिनका रूल होता था, तो उनको खुद का रूल भी चाहिए था. तभी हम लोग देखते हैं उन्होंने क्या किया. सच डिफरिंग आइडियाज अबाउट सोसाइटल चेंज clashed during the social and political turmoil that followed the French Revolution. The various attempts at revolution and national transformation in the 19th century helped define both the limits and potential of this political tendency. तो हम लोग ने देखा फ्रेंच रिवॉल्यूशन में सब ठीक हो गया था, आइडियाज लाइक लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी सब जगह स्प्रेड हो गई थी. बट उसके बाद क्या हुआ,
फिर हम लोग ने देखा नेपोलियन बोनापार्ट आए, उनका भी पावर फटाक से नीचे गिर गया, एंड देन वापस सिचुएशन पहले जैसी हो गई, उनका पावर नीचे गिर गया। तो बाकी के जो किंग थे, जो अपनी टेरिटरीज जो हार गए थे, वो वापस आ गए उनके ऊपर रूल करने के लिए। एंड दैट इज वाई वापस लोगों के आइडियाज चेंज होने लगे। फिर हम लोग ने देखा 3 टाइप्स ऑफ पीपल आए, they were radicals, conservatives and liberals। फिर हम लोग ने उनके आइडिया देखे, बट क्या हो रहा था, सी ये सारे आइडियाज मिक्स हो रहे थे, लोग कंफ्यूज हो गए थे कि कौन सा आइडिया we should follow, which idea we should follow, and that is why all of this chaos was been happening. So now we will see industrial society and social change, which is 1.2. These political trends were sign of a new time. Okay, ये जो ट्रेंड्स आ रहे थे, ये जो डिफरेंट पॉलिसीज आ रही थी, ये क्या था, एक नए नए ट्रेंड का साइन था। मतलब क्या, इट वाज अ टाइम ऑफ द प्रोफाउंड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज। दैट चेंजेस लोगों में आ रहे थे, डिफरेंट काइंड ऑफ चेंज थे। हम लोग ने देखा 3 टाइप के लोग थे, तीनों के अलग अलग पर्सपेक्टिव है चेंज से रिलेटेड। सो नाउ इट वाज अ टाइम के या अपने कंट्री में सोशल और इकोनॉमिक चेंज आएगा। It was a time when the new cities came up and new industrialized region developed। ठीक है, तो slowly and steadily क्या हुआ, न्यू सिटीज वहां पे डेवलप्ड हुए, न्यू इंडस्ट्रियल रीजन्स डेवलप्ड हुए, रेलवे एक्सपांड हुआ, एंड एट द सेम टाइम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अकर। ठीक है, तो हम लोग ने देखे ये सारे आइडियाज क्लैश हो रहे थे उसी टाइम पे। देयर केम इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब का नई नई इंडस्ट्रीज हर एक जगह पे क्रिएट हुई, फिर न्यू सिटीज डेवलप हुए, रेलवे एक्सपांड हुआ। तो जैसे नई नई फैसिलिटीज आ रही थी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अकर हुआ। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अकर हुआ तो कैसे लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता है ना, कि एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाता है कि कहीं पे मैं यहाँ पे काम पे लग गया तो मुझे जॉब मिल जाएगी, उसी तरह से आई कैन अर्न। सो दैट इज हाउ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन केम एंड पीपल टुक द अपॉर्चुनिटी। यहाँ तक बच्चा लोग समझा, कोई डाउट? No, ma'am. ओके। Industrialization brought men, women and children to factories। जैसे अभी मैंने बोला, फैक्ट्रीज डेवलप हो गए थे, इंडस्ट्रीज डेवलप हो गए थे, तो जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए सब आ गए। तो मेन आ गए, वुमेन आ गए, एंड कभी कभी तो उस टाइम पे कैसे चिल्ड्रंस को भी लेबर में करा लेते थे काम। तो ये सारे लोग फैक्ट्रीज में आ गए फॉर द sake of opportunity, for the sake of employment। Work hours were often long and wages were poor। ठीक है, कि इन लोग के पास से काम तो घंटों घंटों तक करा लेते थे, बट जो वेजेस वेजेस मतलब क्या, सैलरी, तो सैलरी उनको देखते थे ना, वो बहुत कम देते थे। अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट उस टाइम पे कॉमन था कि लोगों के पास जॉब नहीं थी, ये चीज बहुत कॉमन थी उस टाइम पे। बट पर्टिकुलरली during times of low demand for industrial goods, housing and sanitation were problems since towns were growing rapidly। Liberals and radicals search for solution to this issues। ठीक है, कि अनएम्प्लॉयमेंट था, लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, वेजेस कम थे, उन लोग काम ज्यादा टाइम तक कर रहे थे, दे वो वर्किंग फॉर लाइक 10 to 12 hours, बट जो वेजेस मिल रहे थे वो कंपैरेटिवली बहुत कम थे। एंड ये सारी चीजों को देख के जो लिबरल्स एंड रेडिकल्स थे ना बच्चा लोग, वो लोग they were very disappointed and they were searching for solution, कि हम क्या ऐसा solution निकाले। So why बच्चा liberals and radicals, and why not the third part which was conservative? Conservative क्यों यहाँ पे solution नहीं ढूंढ रहा है, सिर्फ liberals और radicals क्यों ढूंढ रहे हैं? आप लोग बता सकते हो मेरे को? Why do you think only liberals and radicals were searching for solution? हम लोग ने 3 टाइप देखे, right? We have seen liberals, radicals और conservatives। तो conservatives क्यों नहीं solution के लिए ढूंढ रहे थे? No one? Should I answer?
ओके, बिकॉज कंजर्वेटिव हम लोग ने देखा ना, बच्चे लोग कंजर्वेटिव खुद वो लोग थे जो फर्स्ट स्टेट से बिलोंग करते थे, मतलब क्या, क्लर्जी और प्रीस्ट, मतलब कौन, लैंड ओनर्स। तो वो लोग क्यों सोल्यूशन निकाल लेंगे ना, वो लोग तो खुश थे, उनका लैंड था, उनका फार्म, उनका इंडस्ट्रीज था, और उनके अंडर ही लोग काम कर रहे थे। सो दे वर वेरी मच हैप्पी, सो दे वर नॉट फाइंडिंग सोल्यूशन। बट हम लोग ने देखा लिबरल्स एंड रेडिकल्स कौन थे, मिडिल क्लास के अपर और लोअर क्लास वाले, and they were working day and night na, and they were getting less wages, and that is why they were searching for solution and not conservatives. समझा ये point? Yes, ma'am. Okay, next. Yeah. Almost all industries were the property of individual. Liberals and radicals themselves were often property owners and employers. Okay, अभी देखो मैंने यहाँ पे बताया, liberals और radicals मिडिल क्लास के अपर और लोअर क्लास से बिलोंग करते थे। अभी जो अपर क्लास, मिडिल क्लास के अपर में बिलोंग करते थे, उनकी तो प्रॉपर्टी होगी, उनके अंदर भी एम्प्लॉयज काम कर रहे होंगे, राइट? फिर वो लोग क्यों चेंज के लिए ढूंढ रहे थे? बिकॉज उनका लैंड है, ठीक है, बट वो लोग किसको फॉलो करते थे? किंग को फॉलो करते थे, क्लर्जी को फॉलो करते थे, और किंग और क्लर्जी किस में बिलोंग करते थे? कंजर्वेटिव क्लास में। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा बताया है कि लिबरल्स एंड रेडिकल्स देमसेल्व्स वर ऑफन प्रॉपर्टी ओनर्स एंड एम्प्लॉयर्स, के उनकी उनकी खुद की प्रॉपर्टी ओन, मतलब उनके खुद के लैंड थे, उनके खुद के अंडर एम्प्लॉयर्स थे, बट स्टिल दे वर फाइंडिंग फॉर सोल्यूशन, बिकॉज वो लोग भी, they were also under someone, they were under king, और उनको किंग का सुनना पड़ता था। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा बताया है। Having made their wealth through trade or industrial ventures, they felt that such effort should be encouraged, that its benefit would be achieved if the workforce and the economy was healthy and citizens were educated. Okay, तो what हम लोग ने देखा यहाँ पे कि liberals एंड रेडिकल्स दे वांटेड चेंज। तब उन्होंने कैसे टाइप का चेंज लाया? तो दे फोर्स्ड के ये आइडिया को फोर्स किया कि जो सिटीजन्स है दे शुड बी एजुकेटेड, ओके, एंड हमारा भी इकोनॉमी, लाइक हम वी शुड आल्सो बी ट्रीटेड इक्वली। इफ वी आर वर्किंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो वेजेस भी उतने ही मिलने चाहिए वैसा। Opposed to the privileges the old aristocracy had by the birth, they firmly believed in the value of individual effort, labor and enterprise। ठीक है, कि उन्होंने क्या बोला कि जो एरिस्टोक्रेसी का रूल है ना, वो खत्म होना चाहिए, कि आज एक किंग रूल कर रहा है, फिर कल उसका जनरेशन, फिर परसों उसका जनरेशन, तो ये जो एरिस्टोक्रेसी रूल है, दैट शुड बी एंडेड एंड इंडिविजुअल एफर्ट शुड बी टेकन। कि कोई एक इंडिविजुअल है, इफ ही हैज दोस क्वालिटी कि वो कंट्री को रूल कर सकते, तो उनको आप चांस दो, एंड ये जो एरिस्टोक्रेसी रूल है उनको खत्म करो। If freedom of individual was ensured, if the poor could labor and those with capital could operate without restraint, they believed that societies would develop। ठीक है, तो उनका आइडिया क्या था? सोसाइटी कभी डेवलप होगी if freedom of individual was ensured, okay, that every individual, उनका freedom अगर आप ensure कर रहे हो तब। if poor could labor, and if poor could labor मतलब क्या, कि ठीक है आप उनको लेबर का चांस दे रहे हो, बट एट द सेम टाइम उनको इक्वल वेजेस, उनको इक्वल सैलरी भी दो। एंड फॉर दोज विद कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट रेस्ट्रेंट, ओके, कि जो जिनके पास पैसा था, कैपिटल, इवन दे कुड ऑपरेट बट विदाउट रेस्ट्रेंट, मतलब क्या, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, it should be equally. So if all of these things happen, then only society would develop. So again, this was the idea of ये लिबरल्स और कौन बचा? रेडिकल्स। ठीक है। Many working men and women who wanted changes in the world rallied around liberal and radical group and parties in the early 19th century. So जो सारे working men and women थे जिनको change चाहिए था, what they did, they rallied around liberal and radical groups, okay, कि जो liberal और radical के groups थे उनके साथ वो लोग rally करते थे। कब तक? till 19th century। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? एनी डाउट? Miss, what does radical? रेडिकल्स बच्चा ये आइडिया थे, देखो रेडिकल्स वाले ये थे
हम लोग ने दो टाइप्स के देखे ना, एक लिबरल थे और एक रेडिकल्स थे। तो रेडिकल्स ये रहे, देखो रेडिकल्स कौन थे, जिनका डिमांड था कि कंट्री का मेजोरिटी, आप देखो जो मेजोरिटी दे रहे हैं, जो मेजोरिटी पे एक गवर्नमेंट सिलेक्ट किया उनको आप सिलेक्ट करो। एंड उन्होंने ऑल्सो दे सपोर्टेड वुमेन वोट, के जो वुमेन का राइट्स है वो उन्होंने सपोर्ट किया। तो रेडिकल्स मतलब क्या, रेडिकल्स मतलब ये ग्रुप ऑफ पीपल हो गए जिनका आइडिया सेम था। अब अभी सपोज मैं हूँ और आप हो, ठीक है, तो आप बोल रहे हो कि हाँ वुमेन का जो वोटिंग राइट है वो वैलिड है, मैं उनको मानता हूँ, तो आप रेडिकल्स में आ जाओगे। और मैं मानती हूँ कि हाँ चेंज होना चाहिए, बट आई बिलीव दैट वुमेन शुड नॉट बी गिवन राइट एंड सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। तो मेरा आइडिया अलग हुआ, तो मेरा आइडिया किससे मैच कर रहा है, इनके साथ, लिबरल्स के साथ, राइट। लिबरल्स का मानना था दैट वुमेन शुड नॉट बी गिवन राइट टू वोट, तो फिर मैं लिबरल्स में चली जाऊंगी वैसा। तो लिबरल्स एंड रेडिकल्स बेसिकली क्या है, इट इज ग्रुप ऑफ पीपल विथ ऑल ऑफ दीज आइडियाज, समझा? Yes, ma'am. ओके। और कंजर्वेटिव्स कौन थे, तीन देखे ना हम लोग ने, लिबरल, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स। तो कंजर्वेटिव्स कौन थे, जिसमें किंग आ गए, प्रॉपर्टी ओनर आ गए, वो सब आ गए। तो वो लोग को चेंज चाहिए था, बट दे डिड नॉट बिलीव इन वुमेन राइट्स और यू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, क्योंकि उनको तो अपना पावर चाहिए था ना। सो दे बिलीव्ड इन चेंज, बट उनका मानना क्या था कि स्लो प्रोसेस होना चाहिए वैसा। तो इसीलिए यहाँ पे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ना, तो कौन सबसे आगे आया, लिबरल्स एंड रेडिकल्स आए, बिकॉज वो लोग, लिबरल्स एंड रेडिकल्स में कौन आ गया, वर्कर्स आ गए, वुमेन्स आ गए, वर्कर्स आ गए, वुमेन्स आ गए, जो काम कर रहे थे ना फैक्ट्री में। तो वो लोग इतना टाइम काम कर रहे थे और उनको वेजेस कम मिल रहे थे, इसीलिए लिबरल्स और रेडिकल्स सामने आए सोल्यूशन के लिए। बट कंजर्वेटिव्स नहीं आए, क्यों, बिकॉज उनका तो खुद का प्रॉपर्टी था, उनके अंडर लोग काम कर रहे थे, तो वो लोग क्यों आएंगे ना, दे वो तो हैप्पी कि ठीक है हमारा तो प्रोडक्शन हो रहा है वैसा, समझा? Yes, ma'am. ओके। Some nationalists, liberals, and radicals wanted revolution to put an end to the kind of government established in Europe in 1815. In France, Italy, Germany, and Russia, they became revolutionaries and worked to overthrow this existing monarchs. Okay? तभी क्या हो गया, nationalist, liberals, and radicals, मतलब लिबरल्स और रेडिकल्स तो हम लोग ने देखा, और कुछ ऐसे नेशनलिस्ट थे, नेशनलिस्ट क्या, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। तो ये सब लोग साथ में आए एंड इन्होंने बोला कि ये जो अभी करंट हमारा जो गवर्नमेंट पॉलिसी चल रहा है वो खत्म होना चाहिए। ओके, सो दे केम, दे यू नो दे बिकेम रिवॉल्यूशनरीज एंड दे वर्कड ओवर थ्रू एग्जिस्टिंग मोनार्क्स के। अभी फ्रांस तो हम लोग ने देखा, फ्रांस ये सब मतलब पहले हम लोग ने देखा कि उन्होंने लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी डेवलप कर लिया था, बट स्लोली एंड स्टडी नेपोलियन आया, फिर ये सब हुआ, तभी उनकी हालत वापस पहले जैसी हो गई थी। तो इसीलिए फ्रांस, इटाली, जर्मनी एंड रशिया, ये लोग ने सबने रिवॉल्यूशनरीज बनाए, ग्रुप बनाए, एंड नाउ दे डिसाइडेड कि ये जो मोनार्की वाला रूल है, जो किंग का रूल है, वो फाइनली खत्म ही कर देना है हमें वैसे। तो अभी हम लोग ने यहाँ पे देखा लिबरल्स, रेडिकल्स और कौन है, नेशनलिस्ट। तो नेशनलिस्ट कौन है, वो मैंने आपको बोला ना कि बाद में देखेंगे, तो यहाँ पे लिखा है देखो, nationalists talked of the revolution that would create nations where all citizens would have इक्वल राइट। तो नेशनलिस्ट कौन थे, वो लोग थे जो ऐसी बातें करते थे, कैसी, कि इक्वल राइट्स को प्रायोरिटी देना चाहिए वैसे। सो दे वर नेशनलिस्ट। तो लिबरल्स और रेडिकल्स को लगा ठीक है चलो हम सब साथ में आएंगे एंड वी वुड ओवरकम दिस मोनार्क्स। तो इसके लिए नेशनलिस्ट, लिबरल्स और रेडिकल्स एक साथ आए एंड दे स्टार्टेड क्रिएटिंग रिवॉल्यूशंस। After 1815, क्या है, Giuseppe Mazzini, an Italian nationalist, conspired with others to achieve this in Italy, and nationalists elsewhere, including India, read his writing. तो 1815 में एक what do you say nationalist, देखो ये एक इटालियन नेशनलिस्ट थे, और नेशनलिस्ट हम लोग ने देखा, नेशनलिस्ट किसको बोलते हैं, जो नेशन में इक्वल राइट्स के लिए बात करते हैं। तो 1850 में एक जियोसुपी मजीनी ऐसे करके एक
इटालियन नेशनलिस्ट थे जो जिन्होंने ये आइडियाज इम्प्लीमेंट किए इटाली में, एंड एल्सवेयर जो उनकी राइटिंग्स थी वो सब बाकी के कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया वो उनसे इंस्पायर्ड हुई। तभी मैंने अपन ने देखो यहाँ पे एकदम सबसे पहले स्टार्टिंग में देखा कि सोशलिज्म सब जगह स्प्रेड हुआ। ये देखो यहाँ पे थ्रू द रिवॉल्यूशन इन रशिया सोशलिज्म बिकेम वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट। अभी तक तो हमने अपने रशिया का रिवॉल्यूशन देखा नहीं, तो ये सोशलिज्म क्या है वो अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। Perhaps one of the most far-reaching visions of how society should be structured was socialism. Okay? बेसिक आइडिया कैसा है कि एक विजन सोसाइटी का, कि सोसाइटी कैसा होना चाहिए, मतलब इसको हम लोग सोशलिज्म नहीं बोलेंगे, मैं आगे बोलती हूँ व्हाट इज परफेक्ट, लाइक perfect definition of socialism. By the mid 19th century in Europe, socialism was a well-known body of ideas that attracted widespread attention, ठीक है। तो मिड 19th सेंचुरी तक क्या हो गया, सोशलिज्म वाज अ वेल नोन बॉडी ऑफ आइडियाज दैट अट्रैक्टेड वाइडस्प्रेड नेशन। तो ऊपर हम लोग ने देखा लिबरल्स का आइडिया क्या था, फिर हम लोग ने देखा कंजर्वेटिव्स का आइडिया क्या था, फिर हम लोग ने देखा रेडिकल्स का आइडिया क्या था। अभी एक अलग ही आइडिया आइडिया ये हो रहा था, सब जगह स्प्रेड हो रहा था, एंड दैट वाज सोशलिज्म। ओके, सो व्हाट इज इट वो हम लोग अभी आगे देखेंगे। See, socialism was a well-known body of idea that attracted widespread attention. That every people they thought कि नहीं ये idea अच्छा है, तो कौन सा था ये idea वो हम लोग देखेंगे। Socialists were against private property and saw it as the root of all social ills of the time. Why? Individuals own the property that gave employment, but the property were concerned only with personal gain and not with the welfare of those who made the property productive. बराबर ना। देखो हम लोग ने देखा इंडिविजुअल जिनकी खुद की प्रॉपर्टी थी वो लोग क्या करते थे, सिर्फ प्रॉपर्टी को खरीद लेते थे, एंड फिर एम्प्लॉयज के रूप में जो लोअर क्लास पीपल थे, जो पुअर थे, जो वर्कर्स थे, उनको ये लोग अपॉइंट करते थे एज अ वर्कर, एंड फिर उनके पास से प्रोडक्शन करवा के लेते थे। तो what they used to do, they only used to do it for their personal gain, के प्रोडक्शन आता है, प्रोडक्शन अभी देखो मेरा फार्म है, ठीक है, फार्म के लिए मैंने पुअर या फार्मर्स लोगों को एज अ वर्कर अपॉइंट किया, वो लोग बेचारे दिन रात मेहनत कर रहे हैं मेरे फार्म के लिए, फिर उन्होंने प्रोड्यूस किया, कुछ फार्म है तो कुछ प्रोड्यूस किया, वो प्रोडक्शन को वो लोग बेचते हैं जाके, फिर मार्केट में जो मनी आता है वो लोग वापस लाके मुझे दे देते। तो मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने तो सिर्फ खाली एक प्रॉपर्टी खरीद के रखा, पूरा मेहनत कौन कर रहा है, जो फार्मर्स है, जो वर्कर्स है, वो मेहनत कर रहे, राइट। राइट फ्रॉम वर्किंग इन दैट फील्ड, देन क्रिएटिंग द प्रोडक्शन, देन सेलिंग इट, एंड फिर जो मनी आया वो मुझ तक लाने का काम। तो ये पूरा मैम काम तो कौन, या मैम तो उनको मनी नहीं मिलते। नहीं ना, वो लोग सिर्फ थोड़ा सा जो वेजेस, जो सैलरी देते थे ना, बस उतना ही दे देते थे ना। तो इसीलिए तो हम लोग ने यहाँ पे देखा ना कि ये जो लिबरल्स थे उनको गुस्सा आया कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है दे यूज्ड टू वर्क डे एंड नाइट। ओके, मतलब डे एंड नाइट इन द सेंस उनके वर्किंग आवर्स ज्यादा थे, बट जो उनको वेजेस देते थे ना वो कम था, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में हम लोग ने यहाँ पे देखा ना। सी बच्चा लोग लेस देन 1 मिनट है, तो अगर सेशन खत्म हो गया ना तो वापस ज्वाइन करना। हाँ, यहाँ पे हम लोग ने देखा था ना कहीं पे कि दे वर वर्किंग डे एंड नाइट, बट मतलब दे वर वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर, बट जो उनके वेजेस थे वो कम थे। तो यहाँ पे इसीलिए सोशलिज्म फॉर्म हो रहा था कि ये जो आइडिया था वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा था कि भाई एक ओनर है, उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, बट उसके अंडर तो हम काम कर रहे हैं, हम प्रोडक्शन उगा रहे हैं, हम पैसा लाके उनको दे रहे हैं, फिर उन लोग का ही क्यों पर्सनल गेन, मतलब क्या उनको ही क्यों प्रॉफिट मिलना चाहिए, हमें तो कोई प्रॉफिट मिल ही नहीं रहा है, पर काम तो हम आका टाइम कर रहे थे। तो जिनकी ये आइडियाज थी ना वो सब लोग एक साथ आए। ओके, या अब इतना पार्ट है ना मैं आगे बताती हूँ, बिकॉज सेशन विल गेट ओवर, तो आप लोग वापस ज्वाइन करना, ठीक है।